Let's discuss with the next topic. Equation of rotational motion with constant angular acceleration. अभी ऑलरेडी हम लोग लीनियर मोशन डिस्कस कर चुके हैं विथ कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन. इफ़ यू रिमेंबर वो सारे फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. येस और नो? यही हम same thing exactly we have discussed the same linear motion with constant acceleration. ओके वही टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे मुझे डिराइव करना है. दैट मीन्स अगर मैं ये मेंशन करता हूँ कि एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा नॉट. एट हैविंग एंगुलर पोजिशन थीटा initial be what theta naught that is equal to 0 radian. At time t equal to t final angular velocity let it be which value omega and let the theta to be what theta radian. So from that point of view, okay, whether I can say in a very simple alpha is equal to delta omega by delta t. That means alpha is equal to omega minus omega naught by t. Therefore, alpha t is equal to omega minus omega naught. That means omega equal to omega naught plus alpha t. So whether I have got the first equation? Yes or no? Yes. Now इसके ऊपर से दो कंडीशंस हम सेटिस्फाइड करते हैं. जैसे कि एक तो केस 1 में हम ऐसे ले सकते हैं t इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय अल्फ़ा. दूसरा केस में हम ओमेगा कैन बी रिटन एज विच वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू रिमेंबर वी कैन इवन मेक द यूज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज ओमेगा. Average omega can be written as dash angular displacement upon time. That means theta is equal to average omega into t. What is average omega in this condition can be written as omega plus omega naught divided by which value 2. So substituting this value in this equation, whether I can write theta is equal to omega plus omega naught by 2 into which value t. Now using this equation in this equation whether I can say theta is equal to omega naught plus alpha t, got it or not? Okay, plus omega naught by which value 2 into which value t. So theta is equal to twice of omega naught plus alpha t by 2 into which value t. सो इसको ब्रैकेट ऑफ करोगे तो क्या मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट टी बाई 2 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. दिस टू गेट कैंसल. तो टीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो वेदर आई हैव गॉट वन इक्वेशन रिगार्डिंग दिस थिंग similar to x is equal to ut plus half at square. Yes or no? Okay, now similarly making the use once again theta is equal to omega plus omega naught divided by 2 into t. मैं t का वैल्यू यूज़ करूँगा that is omega minus omega naught by alpha. Substituting this equation in this value omega plus omega naught divided by 2 into omega minus omega naught by alpha. That comes out to be dash.
whether I can write omega square minus omega naught square by 2 alpha. Which formula I have make the use? A plus b into a minus b gives you which value? A square minus b square. So ultimately outcome of the result, omega square minus omega naught square is equal to 2 alpha theta. So I have got the third equation regarding your dash. Equation of rotational motion with constant angular acceleration. होप सो यहाँ तक समझ में आ गया. Okay, let's deal with next example. Statement has been mentioned, a mini train in a park moving at a linear speed of 18 km per hour stops in 10 seconds due to the constant deceleration produced in it. The radius of the wheel of a mini train is 30 centimeter. Find the angular deceleration of the wheel. ओके अभी अगर आप इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले मेरा कंसंट्रेशन किस पे होगा? गिवन क्राइटेरिया पे, लीनियर वेलोसिटी एंड दैट टू इनिशियल. दैट मीन्स v0 इज इक्वल टू, वेदर आई कैन राइट 18 किलोमीटर आवर इनवर्स. दैट मीन्स 18 इंटू 5/18, दैट कम्स आउट टू बी डैश 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, सेकेंड थिंग दिया, इट स्टॉप्स इन अ टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मेनी सेकेंड्स? 10 सेकेंड, मतलब टाइम दिया है with a constant deceleration, and if the radius has been given to you as 30 centimeter, that means 30 into 10 to the power minus 2 meter लिख सकता हूँ. that comes out to be dash 0.3 meter. Now what they have told you to find out? Find the angular deceleration. अभी angular deceleration मतलब in short deceleration find out करने के लिए बोला है alpha. What is the formula for alpha? Alpha can be written as omega minus omega naught by t. Yes or no? Abhi tell me whether you know the value of omega. So answer is yes. That is nothing other than 0 radian second inverse. Why? Because it finally come to rest. Rest मतलब stop हुआ, तो उसकी final angular velocity कितनी होगी? 0. Whether you know omega naught, तो answer is no, क्योंकि ये initial नहीं पता है. बट वेदर यू नो द लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, आंसर इज यस. दैट मीन्स v इक्वल टू ओमेगा आर. दैट मीन्स इनिशियल के बारे में अगर डिस्कस करूं तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू v नॉट बाई आर. यस और नो? व्हाट इज v नॉट वैल्यू? व्हाट इज v नॉट वैल्यू? देखो, वेदर इट इज 5, यस. 5 divided by how much? 0.3. तो it comes out to be dash 50/3 radian second inverse लिख सकता हूँ. तो whether I've got omega naught, true or false? True. Now substituting this value, तो alpha is equal to omega, that is 0 minus 50/3 the whole upon time interval कितना है? 10 सेकेंड का. So whether I can write alpha is equal to negative of 50 by 10 into 3. So it comes out to be dash 0 0 get cancelled. So alpha is equal to minus 5/3. Yes or no? That gives rise to alpha is equal to minus 1.66. Yes or no? Radian second inverse square. So whether the negative sign indicates deceleration or not, the answer is yes. Whether alpha indicate angular deceleration, answer is once again yes. So whether I've got the answer, कितना simple है ना? Just formula based है. You have to just substitute and find out the what answer. Clear or not? Let's deal with the next example. A bus is moving at a speed of 54 km per hour. The radius of the wheel is given as 50 centimeter. On applying the brakes, the wheel stops after 20 rotation. Okay,
यहाँ पे एक नया पॉइंट दिया है, इट स्टॉप्स आफ्टर हाउ मेनी रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशंस कितने दिए, लेट n 20. ओके, व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस एंड ऑल्सो फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन. आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उन्होंने, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बस इज मूविंग विद द स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड दी गई है, हाउ मच हैज़ बीन गिवन, 54 किलोमीटर आवर इनवर्स. दैट मीन्स 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 5 3 जा 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड मिलेगा मुझे. येस और नो. सो इनिशियल स्पीड मुझे मिल गया. अप्लाइज द ब्रेक, मतलब फाइनल वेलोसिटी comes out to be dash 0 meter per second. Radius of the wheel is given as 50 centimeter. Now it has been given as 50 centimeter, मतलब 50 into 10 to the power minus 2, that comes out to be 0.5 meter. Answer is yes. Okay. Now रोटेशन के बारे में हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी. आंसर इज येस. बट क्वेश्चन अराइजेज हियर कि आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ विच वन. टी का वैल्यू ये न्यूमेरिकल में कहीं पे भी नहीं दिया है, तो आई कांट मेक द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. येस और नो. सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर minus omega naught square is equal to 2 alpha theta. I know the value of, I can find out the value of omega. Omega की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ओमेगा नॉट की वैल्यू whether I can find out from v naught or not. Answer is yes. अल्फा नहीं पता है, देखो whether you know the value of alpha, नहीं. अल्फा आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंगुलर डी एक्सेलरेशन. बट थीटा डू यू नो, तो वंस अगेन थीटा आपको पता नहीं है. इज दैट क्लियर. तो हाउ विल यू प्रोसीड. तो सिंपल सा, मेरे को एक बात बताओ, ये अगर सपोज आपका व्हील है एंड ये रोड पे चल रहा है, तो ये जब कंप्लीट एक रोटेशन परफॉर्म करेगा सपोज थीटा, तो कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई रेडियन. सो इन शॉर्ट मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं थीटा डैश फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इज हाउ मच, 2 पाई रेडियन. तो इन्होंने कितना नंबर ऑफ रोटेशन कवर किया, 20. तो मैं ये बोल सकता हूँ सिंपल वे में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा वर्सेस विच वैल्यू, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन. अब ये वन कंप्लीट टर्न के लिए, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए उन्होंने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 2 पाई. द व्हीकल स्टॉप आफ्टर हाउ मच रोटेशन, 20. देन व्हाट विल बी इट्स थीटा वैल्यू. ये समझ में आया, got it or not. तो this is nothing other than which value, your angular displacement. मीन्स यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतने के लिए इतना तो इतने के लिए कितना, तो थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू विच वैल्यू, 2 पाई. तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 40 पाई रेडियन. होप सो यहाँ तक समझ में आया. कोई डाउट. सो वेदर आई गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा. आंसर इज येस. सो इन शॉर्ट अभी मुझे क्या दूसरा कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओमेगा की वैल्यू 0 है, बट ओमेगा नॉट आई हैव टू फाइंड इट आउट. वंस अगेन मेकिंग द यूज ऑफ फॉर्मूला, v इक्वल टू ओमेगा आर, दैट इज v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, दैट इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू v नॉट बाई आर. नाउ चेक करो, v नॉट आपको कितना दिया है, 15 बाई 0.5. यस और नो. अभी 0.5 मतलब इन शॉर्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15 इंटू 10 बाई 5, 5 3 जा 15. सो आई एम गोइंग टू गेट 30 रेडियन सेकेंड इनवर्स. तो वेदर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, वेदर आई गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. In the similar manner, v equal to omega r, that means omega equal to v by r, that is omega equal to 0 by which value, 0.5. So omega I am going to get 0 radian second inverse. तो फाइनल भी मुझे पता चल गया. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वेदर आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा.
that means alpha is equal to omega square minus omega naught square by 2 theta. Got it everyone? This value comes out to be 0, this value 30 square by 2 into 40 pi. Yes or no? Yes. So ultimately solve करो इसको तो आपको क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9, तो 900 डिवाइड बाय 80 पाई. Substitute and solve the value. You are going to get the alpha is equal to -3.58 radian second inverse square. तो you are going to get this answer as angular acceleration. तो एंगुलर एक्सेलरेशन दैट टू कौन से टाइप का एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, डी एक्सेलरेशन. मतलब ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डी एक्सेलरेट बाय एन वैल्यू ऑफ हाउ मच, 3.58 रेडियन सेकेंड इनवर्स. लेट डील विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट हैज़ बीन मेंशन हियर. अच्छी तरह से देखो, what will be the linear distance traveled by the bus during this whole journey. अभी linear distance तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली आपको समझना होगा. से है सिंपल. सपोज ये रोड है एंड दिस इज द व्हील. आफ्टर हाउ मेनी रोटेशन इट कम्स टू स्टॉप. ये पॉइंट पे आके ये रुक गया. तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0. तो अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास को, दैट इज सेंटर पॉइंट को अगर आप देखते हो, वेदर इट कवर्स द स्ट्रेट पाथ, दैट स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज व्हाट, लीनियर डिस्टेंस. एंड लेट दैट लीनियर डिस्टेंस बी हाउ मच, d. एनी डाउट? ओके. अभी सेम रूल, जब ये रोटेट करता है तो ये कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करेगा. अभी ये पॉइंट से जब मूव करना स्टार्ट करता है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड कम बैक टू दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आएगा वो, सेम पॉइंट पे. ये पॉइंट से स्टार्ट करेगा, घूमते धामते, इफ इट कम्स टू सेम पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट, तो उसने कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया. तो वेदर आई कैन से फॉर वन कंप्लीट रोटेशन उन्होंने कवर किया 2πr. तो वंस अगेन सेम रूल, यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेंशन सिंपल लीनियर डिस्टेंस, yes or no, and number of rotation. Number of what? Rotation. As I know, for one complete rotation it is going to cover a circumference that is 2πr. कितना नंबर ऑफ रोटेशन हुआ, 20. अभी 20 रोटेशन परफॉर्म करने के बाद में यहाँ पे आके रुका, तो उसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया, लेट द लीनियर डिस्टेंस बी व्हाट, d. वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, रुक जाता है ये पॉइंट पे. मतलब ये पॉइंट पे आके रुक गया, यहाँ से स्टार्ट किया और ये पॉइंट पे रुक गया, तो ये क्या हुआ उसका लीनियर डिस्टेंस. वो कितने लीनियर डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाता है, आफ्टर कंप्लीटिंग 20 रोटेशन. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, whether I can simplify and cross multiply this value, तो d is equal to 20 into 2 pi r लिख सकता हूँ. That means it comes out to be 40 pi. What is the value of r? 50 centimeter, that is 0.5 for this numerical. So whether I can write here 0.5, substitute and solve the value. Okay, that is 40 into 3.14. आप यहाँ पे पाई की वैल्यू कितना कंसीडर करोगे, 3.14. ओके, सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, तो यू विल बी गेटिंग 62.8 मीटर. होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. प्लीज़ गो थ्रू करना एक दो बार, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग और आ जाए न्यूमेरिकल में. क्लियर? नाउ लेट डिस्कस विथ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अभी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नथिंग अदर देन टॉर्क. दैट टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल, टाउ. ओके, सपोज आप इसको सिंपल वे में समझो. वेक्टर टाउ का फॉर्मूला होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. ओके,
मतलब ये कौन सी टाइप का प्रोडक्ट हुआ आपका, क्रॉस प्रोडक्ट। सो सपोज मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया या कोई बॉडी ले ली, ओके, और वो बॉडी अगर मैंने इस तरह कंसिडर किया कि सपोज उसको ये पॉइंट पे इंटैक्ट कर लिया, लेट इट बी व्हाट, ओरिजिन, लेट इट बी विच वैल्यू, ओरिजिन, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट let that point be what, P, having a position vector which value vector R, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, let it be which value, vector F. so as per the simple condition मैं अगर यहाँ पे इसको इस तरह कंसिडरेशन करता हूँ कि ये पॉइंट है जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो लेट दिस एंगल बी वॉट, थीटा। तो यहाँ पे मुझे कितने कंपोनेंट मिलेंगे, दो कंपोनेंट वेक्टर एफ के, one will be f cos theta and another will be which one, f sin theta. so but obviously यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक f cos theta और एक f sin theta. अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि सपोज मैं ये मेंशन करता हूँ कि मान के लो कि अगर f cos theta ये वैल्यू में ज़्यादा है, ओके, इफ़ f cos theta क्वांटिटी इज मोर एज कंपेयर टू f sin theta, इज दैट क्लियर। तो वेदर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू परफॉर्म अ विच काइंड ऑफ अ पाथ, स्ट्रेट पाथ, किस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ मतलब यहाँ पे कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन, ओके। अभी सपोज मैं ये मान के लेता हूँ कि सपोज एफ साइन थीटा इज मोर, तो यहाँ पे जब एफ साइन थीटा मोर है और ये पॉइंट पे क्या है, फिक्स्ड है, तो जब एफ साइन थीटा मोर होगा तो ये पार्टिकल क्या परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, इन अ वेरी सिंपल टर्म about an axis it is going to perform which kind of a motion, rotational motion. got it or not? so यहाँ पे ये क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन। तो whether I can say that f sin theta is responsible for the particle to perform which kind of a motion, rotational motion. is that clear? तो from that point of view whether I can say कि यहाँ पे r in terms of magnitude and ये आपका क्या है, f sin theta, तो this give rise to dash, तो whether I can write r f sin theta gives you a physical quantity which value, tau. तो whether I can say यहाँ पे theta is the angle अगर सब with which value, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, पोजिशन वेक्टर है, दैट इज वेक्टर r, और वेक्टर r और उसके बीच में एंगल फॉर्म करता है थीटा। तो ये फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से इट इज अ कॉस फंक्शन के साइन फंक्शन, साइन फंक्शन है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सिंपल सा इसका इंटरप्रिटेशन है, सिंपल सा मैंने क्या बताया इसका इंटरप्रिटेशन, गॉट इट और नॉट। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, जो मैंने पहली बार आपको ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया, दिस इज अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन, गॉट इट। अभी अदर वे अराउंड अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको समझाऊँ तो इसको अदर वे अराउंड भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया, let that Cartesian coordinate system be what, suppose x axis, y axis and z axis, okay। आप मान के लो कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ एंड दैट टू व्हाट, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सपोज ये आपका हुआ x, लेट दिस बी व्हाट, y एंड लेट दिस बी व्हाट, z। अगर इस तरह नहीं करना है और सिंपल, और इसको अगर सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसको। सपोज आप मान के लो कि दिस विल बी योर x एक्सिस, दिस विल बी योर y एक्सिस एंड कमिंग आउटसाइड दिस विल बी व्हाट, z एक्सिस, क्लियर। सपोज मेरे पास कोई एक पार्टिकल है ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m एंड इट इज मूविंग इन xy प्लेन, इन विच प्लेन, कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, ये xy प्लेन में सपोज मूव कर रहा है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सिंपल सा इतना ही बता रहा हूँ कि इट इज मूविंग इन विच काइंड ऑफ अ प्लेन, xy प्लेन। सपोज यहाँ पे है पार्टिकल, ओके। नाउ लेट द पोजिशन वेक्टर, अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, लेट इट बी विच वैल्यू, particle of mass m having position vector as vector r। अभी
इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. क्या अप्लाई कर रहा हूँ? आप ऐसे इस तरह इस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो. लेट द फोर्स अप्लाइड बी इन दिस डायरेक्शन. लेट इट बी विच वैल्यू? वेक्टर एफ. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से कि पोजीशन वेक्टर और वेक्टर एफ के बीच में एंगल कितना फॉर्म हुआ? लेट इट बी थीटा. अभी हम ये मेंशन करते हैं कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा एंड आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. आई विल ड्रॉप अ व्हाट? परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन. यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऑन अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ओके, लेट दिस पॉइंट बी P, लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? Q. ये एंगल कितना है? 90 और ये एंगल थीटा है. तो बट ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या हुआ आपका? थीटा. तो दिस एंगल कैन बी कंसिडर एज व्हाट? π/2 माइनस थीटा. होप सो यहां तक समझ में आया. अभी सिंपल सा वंस अगेन, ये जो है दिस इज अ लाइन, अ परपेंडिकुलर ड्रॉप इन अ लाइन ऑन अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और नॉट? आंसर इज यस. तो मैं, और ये जो एक्सटेंड किया है वो परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है. तो ये वैल्यू कौन सी होगी? तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेदर आई कैन से इन अ ट्राइंगल OPQ या OQP, OQP, whether I can say theta is equal to opposite upon hypotenuse, that is nothing other than sin theta is equal to OQ upon R. That means OQ is equal to which value? R sin theta. तो ये जो टर्म है, ये दिस टर्म इंडिकेट्स विच वैल्यू? R sin theta. तो whether I can say that this R sin theta is having a relation with this F or not? Answer is yes. So from that point of view also I can say that यहाँ पे R sin theta and यहाँ पे क्या आएगा? F, which give rise to what? Tau. Tau मतलब टॉर्क. और R sin theta क्या है और F क्या है? तो whether I can say F is nothing other than magnitude of force into perpendicular distance into which value? It is nothing other than which value? Perpendicular distance of line of action, line of action of force from which point? O. Is that clear or not? कोई doubt, कोई query? अभी other way around, this torque can also be mentioned as moment of force with respect to point O or reference point. Clear or not? कोई डाउट, कोई क्वेरी? सो दिस इज नथिंग अदर देन व्हाट? टॉर्क. तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल एक पार्टिकल लिया. ये जो भी पार्टिकल है, तो यहाँ पे मैंने टॉर्क किस पे एक्ट करवाया? इट इज ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, इज हैविंग पोजीशन वेक्टर विच वन? वेक्टर r. एंड वेक्टर r और f के बीच में एंगल क्या फॉर्म किया? थीटा. और उसका लाइन ऑफ एक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच के परपेंडिकुलर मैंने क्या किया है? ड्रॉप किया हुआ है. होप सो यहाँ पे समझ में आया. क्लियर? नाउ लेट डील विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सपोज मैंने ये मेंशन किया, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेक्टर r is equal to 4, 6, 12 meter of a rigid body is vector f, that is 6, 8, 10 Newton. Then find the magnitude of the torque producing the rotational motion
about an axis along which the unit vector is 1 by root 3 1 comma 1 comma 1. ओके, अभी यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट हैज़ बीन गिवन एज रिजिड बॉडी. अभी बिफोर गोइंग टू रिजिड बॉडी आपको ये रिजिड बॉडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इज दैट क्लियर? अच्छा, ये आपने टॉर्क का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, तो रिजिड फॉर्मूला का सर फर्क क्या है? तो सिंपल सा, सपोज ये आपका एक्सिस है एंड कोई बॉडी है आपके पास, रिजिड बॉडी. ओके, अब ये रिजिड बॉडी है. अगर आप ये रिजिड बॉडी को अच्छी तरह से देखोगे तो ये इसके ऊपर क्या करेगा? ओमेगा परफॉर्म करेगा. अभी जब ये रोटेट करेगा तो रोटेशन कब परफॉर्म होगा? जब इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा. टॉर्क एक्ट होगा मतलब वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. अभी एज पर दिस कंडीशन उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बिकॉज वेक्टर आर से हमें ये पता चलता है एक्स, वाई एंड जेड. फोर्स कितने डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? 6, 8, 10, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सिंस इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं इसको सिंपल वे में लिखता हूं, ध्यान देना. वेक्टर आर जो है इट हैज बीन गिवन एज 4,6,12 मीटर. तो वेदर इट कैन बी रिटन लाइक दिस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप in terms of meter, and vector f can be written as dash. Vector f की वैल्यू कितनी दी है? 6, 8, 10 न्यूटन. yes, is that clear? That means 6i cap plus 8j cap plus 10k cap force. अभी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस f. तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है और ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैन बी रिटन एज विच वैल्यू? ए बी साइन थीटा एन कैप. यस और नो? बट इसका जो सॉल्यूशन था क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस हैविंग यूनिट वेक्टर. हैविंग व्हाट? यूनिट वेक्टर. तो जब इस टर्म का आपको वैल्यू मिलता है, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है, तो मैं इसको ये फॉर्मूला को कुछ इस तरह लिखूंगा दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑन विच यूनिट वेक्टर इज एन कैप. क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं दिया है कि अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है कि जेड एक्सिस है, इसलिए हम एन कैप लिखते हैं. दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ डॉट एन कैप. इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर द मैग्नीट्यूड. इसलिए मैंने इसको ग्रेट डिटेल में लिखा है कि the magnitude of the torque with respect to the axis on which the unit vector is n cap, then the magnitude find out करने के लिए this term is magnitude. तो आपको क्या करना पड़ेगा? vector tau in dot n cap. Got it everyone? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. सो हमें इसको सॉल्व करना है. तो how will I solve it? Since as I know vector r cross vector f can be written as dash. It is a cross product, so I have to make the use of determinant rule. If you remember, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में करवाया है i कैप, j कैप, k कैप. अभी यहाँ पे वेक्टर r का जो कंडीशन है, द गिवन वैल्यू, व्हाट इज दैट गिवन वैल्यू? तो विद आई कैन से हियर इट इज 4, 6, 12 एंड फोर्स का क्या है आपके पास? 6, 8, 10. और मैंने इसको सॉल्यूशन में बताया था कि ये प्लस है, ये माइनस है और इसको प्लस है. तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो हाउ विल यू डू? विद आई कैन राइट प्लस आई कैप इन ब्रैकेट
ये टर्म को क्लोज कर दो। वंस यू क्लोज दिस टर्म, तो आपको कौन सा टर्म कंसिडरेशन में लेना है? तो 6 इंटू 10 तो कितना आएगा? 60 माइनस 12 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 कितना होगा? 8 टू 16, 96, तो हमें कितना मिलेगा? 96। ओके, अभी यहाँ पे 96 माइनस 60, तो इट कम्स आउट टू बी 36, और ये माइनस साइन इसका है, तो वेदर कैन पुट डाउन माइनस साइन। तो आपका जो पहला टर्म है दैट विल बी नथिंग अदर देन -36 आई कैप। गॉट इट? कि कंफ्यूजन है? अभी सेकेंड टर्म जो मुझे कंसिडर करना है, तो यहाँ पे साइन क्या है? वेदर द साइन इज नेगेटिव और नॉट। यस, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस जे कैप ब्रैकेट क्लोज। अभी जब ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे से मुझे कौन सा टर्म कंसिडरेशन में नहीं लेना है? ये दो टर्म को कंसिडर में नहीं लेना है। और मैं कौन सा कंसिडरेशन में लूंगा? तो 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 कितना होता है? 40। अभी दूसरा कौन सा लूंगा? 12 इंटू 6, 72, तो यहाँ पे क्या आएगा? -72। तो अभी बताओ, 72 माइनस 40, तो 2 और यहाँ पे 3, और ये माइनस है यहाँ पे, तो कितना आएगा? -32। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा आपका? माइनस ऑफ -32 जे कैप। गॉट इट और नॉट? नाउ यहाँ पे कौन सा ये है? प्लस है, तो वेदर आई कैन राइट प्लस के कैप इन ब्रैकेट। वंस अगेन अनदर टर्म जो ये है, इसको भूल जाने का, उसको कंसिडरेशन में आपको ये वैल्यू को नहीं लेना है। अभी आप कौन सा वैल्यू लोगे? 4 इंटू 8। वॉट इज 4 इंटू 8? 32 माइनस वंस अगेन 6 इंटू 6, तो इट कम्स आउट टू बी 6 6 36। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 36 माइनस 32, तो इट कम्स आउट टू बी -4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस ऑफ -4 इंटू के कैप। होप सो डिटर्मिनेंट रूल आपको समझ में आया होगा। अंडरस्टूड और नॉट? नाउ दिस गिव राइज टू डैश। आंसर मिलेगा -36 आई कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस 32 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। नाउ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इज नथिंग अदर देन योर वेक्टर टाउ, दैट इज नथिंग अदर देन न्यूटन मीटर। Either you can write this torque vector tau as -36 comma 32 comma -4 also. It is one and the same condition. So whether you have got vector r cross vector f, yes or no? Yes. अभी magnitude of torque मुझे find out करना है. Now since magnitude of torque मतलब magnitude of torque which is responsible for rotational motion, magnitude of torque for rotational motion will be given by vector r cross vector f dot which value n cap. अभी vector r cross vector f find out कर चुका हूं मैं, that is -36 32 -4 डॉट। अभी यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि ये आपका कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब दिस इज नथिंग अदर देन डैश योर एन कैप। ये कौन सा वैल्यू हुआ आपका? एन कैप। तो वेदर आई कैन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू हियर और नॉट? यस। तो वो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 1/√3 in bracket 1,1,1. Got it? So the overall outcome of the result will be 1/√3 in bracket -36, 32 -4. Solve करो, substitute करो, तो you will be getting this whole term as -8/√3 Newton meter.
इज दैट क्लियर? सो दिस इज नथिंग अदर देन यू हैव फाइंड इट आउट, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ विच वैल्यू? टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन. एनी डाउट? श्योर? सो इन शॉर्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट हुआ, बट यहाँ पे हमें सिर्फ उसका मोड कंसिडर करना है. तो जब आप मोड मतलब मैग्नीट्यूड कंसिडर करोगे तो सिर्फ आपको क्या लिखना है? प्लस साइन ही मेंशन करना है. क्या साइन मेंशन करना है आपको? प्लस साइन. गॉट इट और नॉट? तो इट विल बी नथिंग अदर देन 8/√3 न्यूटन मीटर. होप सो यहाँ पे समझ में आ गया. तो दिस इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू? योर मैग्नीट्यूड ऑफ अ टॉर्क. कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर एवरीवन? In the similar manner, we are going to discuss with the next formula, next physical quantity, which we called as, बहुत famous है ये, couple. Couple is represented by which value? tau. अभी very simple language में बोलूँगा तो मेरे पास suppose एक यूनिफॉर्म रॉड है. क्या है मेरे पास? एक यूनिफॉर्म रॉड है. अभी ये यूनिफॉर्म रॉड जो है, इसके दो अपोजिट एंड पे, सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट ले लो कहीं पे, इज दैट क्लियर? और इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेट इट बी विच वैल्यू? वेक्टर F1. एंड इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेट इट बी विच वैल्यू? वेक्टर F2. ये आपका ओरिजिन हुआ. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, let this be what? Vector R1, and let this be what? Vector R2. तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये मेंशन करते हैं कि यहाँ पे भी टॉर्क एक्ट होगा. तो यहाँ पे कितने टॉर्क एक्ट होंगे? तो जहाँ पे फोर्स है और ये है, तो यहाँ पे एक वेक्टर τ1 एक्ट होगा और यहाँ पे वेक्टर τ2 एक्ट होगा. तो अल्टीमेटली इट इज नथिंग अदर देन कपल, मतलब वेक्टर τ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर? अंडरस्टूड और नॉट? ओके. अभी इसको थोड़ा सा और बेटर वे में समझाता हूं. अभी बेटर वे में समझाने का मतलब ये है कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करता हूं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट इट बी विच वैल्यू? x एक्सिस, y axis and z axis. Let this be x, let this be y, and let this be what? z, and this will be your origin. Suppose मान के लो कि यहाँ पे, is that clear? एक रॉड रखा हुआ है. वही सेम कंडीशन. ओके. अभी ये रॉड पे ये जो पॉइंट है, लेट दैट पॉइंट बी विच वैल्यू? वेक्टर R1. और इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, लेट इट बी विच वैल्यू? वेक्टर F1. ओके. सेकेंड कंडीशन, ये एंड लेट इट बी कंसिडर एज विच वैल्यू? वेक्टर R2. और इसके ऊपर फोर्स एक्ट जो हो रहा है ये पॉइंट पे, लेट इट बी विच वैल्यू? वेक्टर F2. नीचे के डायरेक्शन में. अंडरस्टूड? नाउ सपोज मैं मान के लेता हूं, सपोज आई कंसिडर लाइक दिस, लेट दिस एंगल बी थीटा. तो बट ऑब्वियसली दिस एंगल बी व्हाट? थीटा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि दिस इज योर वेक्टर R1 एंड दिस इज योर वेक्टर R2. देन व्हाट कैन आई से अबाउट दिस वैल्यू? तो आई कैन से दिस इज नथिंग अदर देन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2. Okay, now if I pull this thing in forward direction, so this angle will be nothing other than dash pi minus theta. So first of all, keep this in mind. Suppose I have considered a Cartesian coordinate system. Okay, I have considered a rod and one end of the rod having a position vector R1 and the force applied is what? Vector F1. And the other end of the rod, let it be which value? Having position vector R2 and the force applied is what? Vector F2.
Now let that makes an angle of theta. So and this, the distance between these two force can be written in the vector form as which value? Vector r1 minus vector r2, and let that angle be what? Pi minus theta. Why pi minus theta I have considered? Because this whole angle will be how much? Pi. If this angle is theta, then but obviously this angle will be how much? Pi minus theta. So from this whole point of view, is that clear? Whether I can say torque will be acting, यहाँ पे टॉर्क एक्ट होगा वेक्टर टाउ 1 एंड अनदर टॉर्क विल बी एक्टिंग हियर वेक्टर टाउ 2. तो कपल के हिसाब से वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर टाउ 1 प्लस वेक्टर टाउ 2 बोल सकता हूँ. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? सो सिंस एज आई नो टाउ कैन बी रिटन एज डैश वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. सो इन द सिमिलर मैनर वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर f1 प्लस वेक्टर r2 क्रॉस वेक्टर f2 लिख सकता हूं. आंसर इज बट ऑब्वियस यस. अभी सिंपल सा रूल, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू मुझे मिला वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर f1 प्लस वेक्टर r2 क्रॉस वेक्टर f2. Now since both these forces are mutually opposite in direction, so when it is opposite in direction, so whether I can say vector f2 is equal to negative of vector f1 because they are mutually opposite in direction. So ultimately the final outcome of the result will be nothing other than vector r1 cross vector f1 plus vector r2 cross नेगेटिव ऑफ f2 के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? नेगेटिव ऑफ वेक्टर f1. तो वेदर दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर f1 नेगेटिव ऑफ वेक्टर r2 क्रॉस वेक्टर f1. सो द होल पॉइंट ऑफ व्यू कम्स आउट हियर, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 ब्रैकेट क्लोज क्रॉस वेक्टर f1. सो मुझे यहाँ पे जो भी मिला that is your couple. Okay, now since from this diagram whether I can say that this r1 minus r2 vector whether f1 के साथ में it is making an angle of how much? Pi minus theta. So from this point of view ये cross product है. So tau vector tau that is couple is equal to magnitude of r1 minus r2 f1 sin pi minus theta. Got it or not? Now since everyone know, okay, what can I say from this point of view? Since sin pi minus theta can be written as which value? Sin theta. Clear? So ultimately from that point of view couple is equal to magnitude r1 minus r2 f1 sin theta. Got it here? Now from the diagram itself इसको मैं थोड़ा सा और बेटर टर्म में लिख सकता हूं, magnitude of r1 minus r2 sin theta in bracket और यहां पे क्या लिखूंगा? f1. Now from the figure itself it says that magnitude of r1 minus r2, okay, sin theta can be written as perpendicular distance. वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? perpendicular distance between two forces. It is a perpendicular distance between which forces? Two forces. Now this give rise to moment of couple. वही जो टॉर्क है आपका उसको ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ f1 into whether I can say it is nothing other than perpendicular distance between two
forces. Between how many forces? Two forces. अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा आपने, तो उसका रीजन बताता हूँ. सी, सबसे ज़्यादा कपल कब एक्ट होगा? When the couple will be acting maximum. तो कपल एक ही टाइम पे मैक्सिमम एक्ट करेगा when थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? पाई बाई टू. दैट मीन्स साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 1. गॉट इट? इसके लिए, और पाई बाई टू इंडिकेट्स क्या करता है? परपेंडिकुलर. क्या इंडिकेट करता है? परपेंडिकुलर वैल्यू इंडिकेट करता है. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन दैट आर मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. जैसे कि आप कोई स्कूटर चला रहे हो, तो स्कूटर का मैंने स्टार्टिंग में इसके लिए हैंडल है ना, ये स्कूटर का, या आप कोई भी बाइक ले लो या कुछ भी ले लो, अगर आप ये कंसीडर करते हो तो अच्छी तरह से इसको समझो. ये इसके सेंटर पे बोल्ट होता है. जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिक ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है. तो ये दोनों भी फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे. कैसे डिस्टेंस पे एक्ट होते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इज दैट क्लियर और नॉट? ये जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेटमेंट दिया था. क्लियर और नॉट? और उसका मैंने प्रूफ यहाँ पे आप लोग को मेंशन करके दिया कि अल्टीमेटली द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी द वन एंड द सेम. क्लियर? अदर वे अराउंड इसको बेटर टर्म में कैसे लिखते हैं वो भी समझ लो. मेनी ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन of the two forces, magnitude of any one of the two forces into perpendicular distance between the two forces. इट इज़ वन एंड द सेम. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी मिला है दैट इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू योर कपल. ये बात भी तो सही है ना. अभी यहाँ पे जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा. आप टू व्हीलर चलाते हो तो देखो यहाँ पे आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे, सपोज 1 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी कितना डेवलप होता है? 1 न्यूटन ही डेवलप होता है. इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर F2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर F1 अपोजिट डायरेक्शन में, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? द मैग्नीट्यूड विल रिमेन द व्हाट? सेम. इज दैट क्लियर और नॉट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक? सो इन शॉर्ट आपने दो टॉपिक डिस्कस किए. एक तो आपने कौन सा पढ़ा? टॉर्क, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F. टॉर्क को कंसिडर करके हमने आज कौन सा टॉपिक डिस्कस किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कंसिडर किया कपल. That is nothing other than magnitude of any one of the forces, any one of the two forces into perpendicular distance between the two forces. Clear or not? एक और टॉपिक करवा रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान देना. इक्विलिब्रियम, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी. हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं फॉर द ट्रांजिशनल, दैट इज लीनियर मोशन. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वेरियस फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. ऐसा कुछ पढ़ा था हमने. वेक्टर F1, वेक्टर F2, डिफरेंट डायरेक्शन में. यस और नो? इफ it maintains equilibrium, that means sum of all the forces acting will be equated to what? 0. That means sum of all the forces acting along x will be 0, sum of all the forces acting along y will be 0, and sum of all the forces acting along z will be 0. In the similar manner, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई रिजिड बॉडी है और वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब उसने कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. क्या मेंशन किया उन्होंने? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब वो स्टेडी स्टेट में है. तो वेदर आई कैन से कि इसके ऊपर जितने भी रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट होंगे वो इक्वेटेड टू क्या होंगे? 0. जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि ये ऑब्जेक्ट ने क्या मोशन क्या परफॉर्म किया है, तो वेदर आई कैन से इट इज नथिंग अदर देन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम. कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ पे? क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ परफॉर्म नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? बिकॉज सम ऑफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वेटेड टू 0. इन द सिमिलर मैनर, इफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग इज अंडर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेडी पोजिशन पे है, तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग विल बी 0. दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग अलॉन्ग x विल बी 0, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग अलॉन्ग y विल बी 0, एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग अलॉन्ग z विल बी
0. इज दैट क्लियर? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप टॉर्क कंसिडर कर रहे हो, इफ द टॉर्क इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो टॉर्क इज टू बी कंसिडर एज नेगेटिव, एंड इफ द टॉर्क इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर टॉर्क मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव. ये आपका साइन कन्वेंशन है. क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा आपका? पॉजिटिव. अंडरस्टूड? आराम से लेक्चर वापस से एक दो बार गो थ्रू करो, समझो. इज दैट क्लियर? इजी टॉपिक्स है. यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक. ओके, एक दो बार आप लोग को रिवाइज करना होगा, तो एक दो बार रिवाइज करो, उसको समझ लो. क्लियर और नॉट? श्योर एवरीवन?